Hello students, I am Mona Yadav from MLP International School, Rajpura. Today is the time of challenge and competition. So our school is going to a better preparation of competitive exams like NDA, NTSC and military schools examination. If you want to be successful in your life, then you try better than before. It's very important for you. You know, competitive exam is very tough, it's very hard, but it's not impossible. It is possible if you work hard. So you must try for this. NDA, military schools examination and NTSC, National Talent Search Examination preparation forms a strong base of students for higher level competitive exams and other scholarship examination. We will provide all the necessary materials including all the subjects like SST, Maths and Science for all the classes. So just start working hard because during lockdown you have enough time period for your other preparation along with your syllabus. We MLPNs is trying to do best for your better future. So just start and never stop until you get there. So let's start. This video is all about the different states of our country, India. This video describes different Indian states and their respective capitals and where all are located. So let's begin. So students, you know India is the 7th largest country in the world and also the second populous country. It lies in the southern Asia and there are 28 states and 8 union territories in India as of April 2020. In this video, we will cover some states, but first of all, we need to know about 4 directions. So there are mainly 4 directions: east, west, north and south. If any object pointed between north and east. Okay students, north and east. Then we can say it is in northeast, and if any object pointed between north and west, then we can say it is in northwest. Let's start from the north. In the north, we have Jammu and Kashmir at the top, and Jammu and Kashmir and Ladakh now became a union territory which was earlier a state. So Jammu and Kashmir, winter capital is Jammu and summer capital is Srinagar. And Ladakh, which capital is Leh. Below J&K, we have Himachal Pradesh. We have Himachal Pradesh. And its capital is Shimla. Below Himachal Pradesh, it's Uttarakhand, and which was very earlier a part of Uttar Pradesh. Its capital is Dehradun. And after that, we have Punjab and Haryana, which share a common capital, that is Chandigarh. Chandigarh is also a union territory. Below Uttarakhand, we have Uttar Pradesh and its capital is Lucknow. Coming to the west, we have Rajasthan and its capital is Jaipur. And then we have Madhya Pradesh at the center of the India and its capital is at Bhopal. After that, we have Gujarat. Its capital is Gandhinagar. Below Gujarat, Maharashtra is next state and its capital is Mumbai. And in the east, we have Bihar and its capital is Patna. So I repeat again all these states. We start from here. First is Himachal Pradesh, its capital is Shimla. Himachal Pradesh, its capital is Shimla. Punjab and Haryana, its capital is common capital Chandigarh. Next, Uttarakhand, its capital is Dehradun. Uttarakhand, its capital is Dehradun. Next, Rajasthan, its capital is Jaipur. Uttar Pradesh, its capital is Lucknow. Gujarat, its capital is Gandhinagar. Madhya Pradesh, central state of the India, its capital is Bhopal. Bihar, its capital is Patna. After that, Maharashtra, its capital is Mumbai. Okay students, so today you have to learn these states
with their capitals and locate at your Indian political map with directions. Tomorrow we will discuss and we will write states in a alphabetical order for your better learning. Thank you. Keep it up. Hello student, a very pleasant morning to you all. I am Vinita ma'am, teaching in MLP School Rajpura. Student, in today's video we will do the cursive writing, that is for the class 6 to 9. Student, I want to share a thing from you that whenever you people are doing writing, firstly hold your pen in very light way, because if you are holding it in tight hand, then through this your hand also get pain, and from this holding your full concentration is on the pen only. You can't concentrate it on your writing. So student, whenever you are going to hold your pen, I think you should hold it like that. Put it in this direction like that, through with your only two fingers. The first, here you have to put your thumb, then here you have to put your finger, and for the support you have to put your middle finger. Okay student, after that your pen should be here. See, it is not in this center of the hand, it would be in this slant way. If you are holding your pen in a slant way, then you can write it in a very smooth handwriting. Okay student, this was the tip that I was to give to you, that will be very helpful in writing. So student, I hope you will do it and you will definitely obey my request, that is student. Okay, from this after this we can continue our writing. We will start our cursive writing from our today's thought. So let's start it. Well students, so let's start our today's cursive writing class. We will start from today's thought. Student, don't judge each day by the harvest you reap, but by the seeds that you plant. Said by रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. देखिए स्टूडेंट, ये थॉट किसने बोला है? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. इनका कहना है कि हमें अपने डोंट जज ईच डे, हमें अपने प्रतिदिन को इस तरीके से जज नहीं करना चाहिए. बाय द हार्वेस्ट यू रीप, जो फसल हम काटते हैं हमें अपने डेज को उसके अकॉर्डिंग जज नहीं करना चाहिए. बट बाय द सीड्स दैट यू प्लांट, किस हमें जो हम बीज बोते हैं उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स को जज करना चाहिए. मीन्स जिस तरीके का बीज हम बोते हैं उसी तरीके की प्लांट में हार्वेस्ट फसल आती है. स्टूडेंट देखिए, अगर हम गुड क्वालिटी के सीड्स को बोते हैं तो हमें गुड क्वालिटी की ईल्ड्स भी मिलती है, पैदावार अच्छी मिलती है, हेल्दी होते हैं सीड्स, डिसीज़ फ्री होते हैं, जैसा कि आप साइंस में पढ़ते भी होंगे स्टूडेंट. देखिए, तो सेम उसी तरीके से कहने का मतलब ये है कि हम अगर अच्छी फसल बोते हैं, अच्छे बीज बोते हैं तो फसल हमें अच्छी मिलती है. उसी तरीके से अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमें उन कामों का जो नतीजा होता है, जो परिणाम हमें मिलता है स्टूडेंट्स, वो भी अच्छा मिलता है. अगर हम गलत काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर चोरी वगैरह करते हैं या फिर कुछ और भी अलग से गलत अगर हम कुछ करते हैं तो हमें उसका परिणाम भी गलत ही भुगतना पड़ता है. तो इसीलिए हमेशा वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ इन अ बेटर वे टू ग्रो, for our growth, for our development and for our better future. Okay student, so now we'll start our cursive writing class. Let's do it. Student, we will write firstly concept of knowledge. Concept of knowledge. According to the Bhagavad Gita,
देखिए स्टूडेंट, भागवत गीता में नॉलेज के बारे में क्या बोला गया है वो कंटेंट आज हम राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू educational philosophy, educational philosophy, the Bhagavad Gita is the most valuable treasure of Indian wisdom. In the Bhagavad Gita, knowledge is defined as put a comma, inverted commas begin, through which we look, through THROUGHS, through which we look at all living beings with a single unpassioned attitude, with a single SINGL is single, unpassioned। देखिए स्टूडेंट, पैशन का जो अपोजिट वर्ड होता है it would be unpassioned. From our cursive writing we can increase the vocabs also. Unpassioned attitude and where one can see unity in diversity. What is it? Unity in diversity. You know student, what does it mean? University in diversity means विभिन्नता में भी एकता. Only that is called as pure knowledge, Inverted commas begin. After putting full stop, we will start inverted commas. Like Upanishads, put a comma, in the Gita, it has been bifurcated in apara and para. In apara and para. Okay student, put a full stop. We have completed this paragraph. Student देखिए, whatever we have write in this paragraph,
It's a very important fact about the knowledge in भागवत गीता. कहने का मतलब ये है कि अगर हम एजुकेशनल फिलॉसफी के अकॉर्डिंग बात करें तो भागवत गीता जो है हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल कीमती खजाना है इंडियन विजडम का. इसमें देखिए नॉलेज के बारे में कहा गया है कि नॉलेज क्या है, through which we'll look at all living being with a single unpassioned attitude and where one can see unity in diversity. यहाँ पर नॉलेज की अगर हम बात करें, नॉलेज से हमें देखिए स्टूडेंट क्या मिलता है कि हम अगर किसी के पास ज्ञान है तो वो हर किसी पर्सन को एक समान देखेगा. यहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज़ की चीज़ें होती हैं बट स्टिल दैट इंडिया में यूनिटी है. दैट इज़ वाई इंडिया इज़ कॉल्ड एज unity in diversity. Okay student, through our cursive writing video we can not only enhance our writing skill but we can also upgrade our reading skill. So be attentive toward your writing and toward your reading. Have a good day to all. Goodbye. Hello students, myself Rohit Kumar. We are going to teach now something different from syllabus. We are going to teach or coaching for competition exams which are needed for today's competition work. So we prepare the students to teach Sainik School, Navodaya, military exam, NTSC and other competitive exams. Whatever I want to teach, it will come in your competition exam. So now I will start one by one the each questions from the topic cell. It is the part second video. Now the first question appear on the screen. The first question is, in humans the number of chromosomes in a haploid cell is. ह्यूमंस के अंदर जो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं. तो ये जो हैप्लॉइड सेल है वो क्या होती हैं, जनरेटिव सेल्स होती हैं, जर्म सेल्स के अंदर होती हैं, हैप्लॉइड सेल्स कहते हैं, जिनमें क्रोमोसोम नंबर आधे होते हैं. और हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर 23 पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं. तो हैप्लॉइड मतलब हाफ, तो 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे. तो ऑप्शन आपको 23, 46, 44 और 30 दिया हुआ है. तो आपका सही जवाब क्या होगा, 23 होगा. क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन के ऊपर है. इन मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर. मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स में ये जैसे मैंने क्रोमोसोम बना दिया तो ये बीच में क्या है, ये है सेंट्रोमियर है. ठीक है, तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में पोजीशन क्या है सेंट्रोमियर की, टर्मिनल, मिडल, सब टर्मिनल या नन ऑफ दीज. तो आपका जवाब क्या होगा बच्चों, मिडल होगा. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है. इन प्लांट सेल्स साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय. प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस किस में होता है, सेल प्लेट, इन्वेग्नेशन, फुरोइंग या ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. तो आपका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर, 23 का सेल प्लेट के अंदर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है. क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन के ऊपर है. द क्रोमोसोम्स आर डिस्टिंक्टली विजिबल इन. क्रोमोसोम बिल्कुल कब विजिबल होते हैं, कौन से फेज में होते हैं, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, टीलोफेज, ये सारे के सारे क्या सेल डिवीजन की फेजेज हैं. तो क्रोमोसोम नॉर्मली जो विजिबल होते हैं वो होते हैं बच्चों मेटाफेजेज के अंदर, है ना. मेटाफेज में क्रोमोसोम्स डिस्टिंक्टली क्या होते हैं, विजिबल होते हैं. अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर ही है, 25th क्वेश्चन. इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द सोर्स ऑफ लाइट यूज्ड इन. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो सोर्स ऑफ लाइट है उसमें किसका उपयोग होता है, ऑर्डिनरी डे लाइट का, अल्ट्रावायलेट का, इंफ्रारेड का या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का. तो सही जवाब क्या है आपका, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 26 जो कि एनटीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है. द विच नाइट्रोजन बेस इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए. नाइट्रोजन बेस आपको बताना है कि कौन सा प्रेजेंट होता है आरएनए में, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन या यूरेसिल. तो जब आरएनए की बात की जाएगी तो क्या होगा, यूरेसिल इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27. इफ ए न्यूक्लियस इज रिमूव्ड फ्रॉम ए लिविंग सेल. अगर मान लीजिए हमने लिविंग सेल में से न्यूक्लियस को रिमूव कर लिया तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म या सेल सेल. तो सही जवाब क्या होगा, साइटोप्लाज्म. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28. ट्रू स्टेटमेंट इज.
Plant cell has cell membrane. Number of ribosomes is constant. Protein synthesis is done in plastids. The shape of animal cell is spherical. तो 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से जो बिल्कुल सही है वो क्या है? द प्लांट सेल हैज ए सेल मेम्ब्रेन। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों? बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। 29 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज सेल अकर्स एट न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन या फिर राइजोसोम्स। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन सेल अकर्स एट, तो आपका सही जवाब क्या होगा बच्चों? राइबोसोम्स। ये तो सभी बच्चों को मालूम होगा। सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स आर लाइजोसोम्स, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स या न्यूक्लियोसोम्स। तो सुसाइडल बैग ऑफ सेल को क्या कहा जाता है? किसको कहा जाता है सुसाइडल बैग्स? ये आपका सही जवाब है, लाइजोसोम्स को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, जेनेटिक कैरेक्टर्स ऑफ ए लिविंग बीइंग आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग बाय राइबोसोम्स, क्रोमोसोम, प्लाज्मा या लाइजोसोम्स। जो जेनेटिक कैरेक्टर है लिविंग बीइंग का वो ट्रांसमिट होता है बच्चों के अंदर, वो किसकी सहायता से होता है? राइबोसोम्स की सहायता से, क्रोमोसोम्स की सहायता से, प्लाज्मा या लाइजोसोम्स। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा 31 का वो बी ऑप्शन है, क्रोमोसोम्स के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। द एलिफेंट्स ईट, एक मिनट रुकिएगा, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। एलिफेंट ईट्स ग्रास एंड बोथ हैव सेल्स। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेल्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। इनमें से बिल्कुल सही बताना है आपको कौन सी है। एलिफेंट सेल्स आर बिगर देन द ग्रास सेल। Elephant cells have plastid and small vacuoles. Grass cells have cell walls and vacuoles. Grass cells have cilia and chloroplast. Elephant cells have a cell membrane and mitochondria. तो आपका जो सही जवाब है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो बिल्कुल आपको जो करेक्ट जो जवाब है वो क्या है? सी ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पर? बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो सी ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है कि ए एंड सी, बी एंड सी, सी एंड ई या फिर डी। तो मैं आपको बता दूँ सी बात भी बिल्कुल सही है ना। ग्रास सेल के अंदर क्या होते हैं? सेल वॉल और वैक्यूल्स होते हैं। और लास्ट वाली बात भी बिल्कुल सही है, एलिफेंट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो अल्टरनेटिव दे रखे हैं करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? करेक्ट आपका क्या रहेगा यहाँ पर बच्चों? सी ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। तो फुली आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखें और इन क्वेश्चंस को रिवाइज करें। ये आपके कंपटीशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस थे। आपसे फिर कल मुलाकात होगी बच्चों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। Good morning students, I Neetu Yadav, your science teacher, welcome all students in our YouTube channel of online classes. So students, as you know, due to this coronavirus, we can start your classes through online method. So students, in July, we can start a new pattern for preparation of your study or for competitive exams as per ordered by Chairman Sir and Director Sir. In this new method, you study about different competitive exams which is studied by your teachers of different subjects. So science you also study by a different method, like you can study through any model or activity or on practical basis. So students, in today's video, which is for class 1st to class 9th, in this video we do an activity which is also you can do at home. In this activity we can see that which object is float or which object is sink in water. So students, let's start our activity. So students, in today's video we start doing our activity. In this activity we know about which substance are float or which substance are sink in water. So students, in this video you see about 2 bowls. 2 transparent bowls I have to take for this activity, and also I have take a spoon, iron spoon, coins, iron metal piece. These are made up of iron metal piece, some piece of wood,
colorful pens cap which are made of plastics, a bottle cap, and also a button which are also made of plastic. I also take a plastic bowl and a rubber bowl. ठीक है, these are materials which are required for this activity. So students, let's start our activity. In this activity, or students, we know about that some materials are lighter than water and some materials are heavier than water. So we can easily say that lighter materials are float in water and heavier materials are sink in water. But this theory, it has a reason, and in science we know that every object or every topic has a science related to it. So floating or sinking in water also have a reason why some object is floating or why some object is sinking in water. So students, it is based on density. Okay, डेंसिटी पे बेस होता है. डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी. इसमें क्या होता है? डेंसिटी आपकी बताती है कि कौन सी चीज़ पानी में सिंक करती है और कौन सी चीज़ पानी में फ्लोट करती है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट वी टेक वाटर एंड fill our bowls with water. Half fill, both bowl will be filled with water. Okay students, now in bowl we add a spoon. So we can see that spoon is completely सिंक इन वाटर. देखिए सिंक कर गई है पानी के अंदर. नीचे से दिख रहा है आपको स्पून, ये पानी के अंदर क्या कर गई है? सिंक कर गई है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब नाउ ऐड मेटल पीस. वी कैन सी दैट दीज आर आल्सो सिंक इन वाटर. ओके, नाउ आई ऐड सम पीस ऑफ वुड. You can see piece of wood are float on water. Now I add caps, my bottle cap. You can see these plastic or wood is float in water. But button, which is also made of plastic, is sink in water. Why? All plastics are used but are float in water, but button is which is also made of plastic is sink in water. I will give this reason to you later. Also add coin, this also sink in water. So in this activity, in this bowl you can see some metals which are made of iron, some plastics are sink in water, but wood piece, plastic caps are float in water. So students, it show a very basic reason about this. What? Displacement. अब displacement is the thing, or in simple reason we can say that to remove and takes place of something is known as displacement. अब displacement के बारे में हम जानते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ की जगह क्या कर लेती है? गेन कर लेती है, उसे हम displacement कहते हैं. कैसे? Let it aside this bowl and we can take a tray so that our water cannot flow outside. So students, this is plastic bowl. I put it in the water. You can see that plastic bowl is float on water. Now I take out this plastic bowl outside and take this rubber bowl and then I put it on water. So students, you say this bowl is sink in water. Also surface of water increase. अब देखिए surface of water increase हुआ. पहले surface of water इतना था, ठीक है, अब surface of water increase होके ऊपर आ गया है. ठीक है, इससे आपको क्या पता चला है? जितना वॉल्यूम इस बोल का है उसने अपना वॉल्यूम क्या किया है? पानी में जाने का अपना वॉल्यूम ले लिया है, जिसकी वजह से
जो सरफेस है वाटर का इंक्रीज हो गया, इसलिए हम कह रहे हैं कोई भी रिमूव और टेक्स प्लेस, किसी की चीज़ जगह को वापस से लेना, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट है फ्लोट करेगी बिकॉज ऑब्जेक्ट विच फ्लोट बैलेंस और डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू इट्स वेट। अब क्या कह रहा है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये उतना ही वेट है, बैलेंस करती है पानी के साथ उतना जितना उसका वेट है और जितना ही वाटर का वेट है, ठीक है, इसलिए क्या है ये फ्लोट कर पा रही है। लेकिन कोई भी जो हैवियर चीज़ है, हैवियर ऑब्जेक्ट है, उसका अगर ऑब्जेक्ट, ये जो हैवियर ऑब्जेक्ट है इसका वेट अगर वाटर के वेट से ज़्यादा है तो यह क्या करती है, वाटर को डिस्प्लेस करती है, मतलब पानी के अंदर सिंक करती है। So in easy language we can say that object when put in water will displace water and either of them float or sink in water। अब क्या कह रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम जब पानी के अंदर डालते हैं तो वो अपने पानी को क्या करती है, तो कुछ पानी को क्या करती है, रिमूव करती है, या तो उसकी वजह से वो चीज़ फ्लोट करती है और सिंक करती है। इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। अब ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ कैसे फ्लोट करेगी, कैसे सिंक करेगी। फॉर एग्जाम्पल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है और उस ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है, शेप और आपका वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये 2 चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं इस पर कि कौन सी चीज़ फ्लोट करेगी, कौन सी चीज़ सिंक करेगी। अब देखिए ईजिली सा चीज़ है, आपका ये जो स्पून है, ये जो स्पून थी आपकी, ये मेटल से बनी होती है, और जो आपकी शिप है, जो समुद्र में शिप चलती हैं वो भी क्या है, आपकी मेटल से, आयरन से मिलकर बनी होती है। लेकिन जो आपकी शिप है वो फ्लोट करती है, लेकिन ये आपकी क्या कर रही है, सिंक कर रही है। तो इसका यही एक अच्छा एग्जांपल हम दे सकते हैं कि इफ़ शिप एंड स्पून बोथ आर मेड अप ऑफ सेम मटीरियल येट वन सिंक्स एंड वट फ्लोट ऑन द वाटर। अब क्या कह रहा है, दोनों चीज़ें एक ही मटेरियल से बनके बनी होती है, लेकिन एक चीज़ डूब जाती है और एक चीज़ फ्लोट करती है। ये किस वजह से, बिकॉज शिप हैज़ लार्ज इन साइज एंड स्पून इज साइज इज़ कॉम्पैक्ट। शिप का साइज़ क्या है, लार्ज होता है, लेकिन जो स्पून का साइज़ है वो कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। इसलिए अब जितना शिप, आप मान लीजिए शिप क्या है, बड़ी होती है, उनका वेट क्या है, उतना जितना वो बड़ी होगी उतना ही वो वॉल्यूम वो करती है, कवर करती है वाटर का, इसलिए वो क्या करती है, फ्लोट करती है पानी के ऊपर। अगर उसका शिप का वजन ज़्यादा हो जाता है वाटर से तो वो शिप भी क्या कर सकती है, सिंक कर सकती है वाटर के अंदर। सो स्टूडेंट्स, in this activity you see what is the main reason why object is sink or why object is float on water. Thank you for listening students. That's it for today. Hello student, good morning everyone. How are you? I hope you are better at your home. In today's class, I tell you some GK question that generally ask in competitive exams. So student, you have to see the video complete and learn all the question answer and write in your notebook. That help you to crack the competitive exam. So let's start our topic. Hello student, welcome to your online classes of GK by Priyanka ma'am. Our first question, we completed our 30 question in previous video. Then question number 31 is, which is the biggest bird in the world? Answer is ostrich. Next one is, which is the holy river in India? पवित्र नदी कौन सी है इंडिया? ये गंगा, और ये सबसे लॉन्गेस्ट नदी भी है। ओके। नेक्स्ट वन इज, वेयर इज IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी? कहाँ पे है? देहरादून में। नेक्स्ट वन इज, विच इज द कोल्डेस्ट लोकेशन इन द अर्थ? धरती पर सबसे ठंडी जगह कौन सी है? ईस्ट अंटार्कटिका। ओके। नेक्स्ट वन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फेसबुक? कहाँ पे है? मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट। ओके, कैलिफोर्निया में है फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है वो। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैव द डायनासोर्स बीन एक्सटिंक्ट? मीन्स जो डायनासोर्स हैं, एक जानवर है ये जो धरती पर कितने साल पहले रहते थे? अबाउट 65 मिलियन ईयर्स। नेक्स्ट वन इज 37 क्वेश्चन, वेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? अंडमान और निकोबार जो आइलैंड्स हैं उनका जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है? कोलकाता सर्किट बेंच ऑफ द एट पोर्ट ब्लेयर। जो इनकी कैपिटल है अंडमान निकोबार की, वो कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर में। तो वहां। नेक्स्ट वन इज, नासा's मोस्ट फेमस स्पेस टेलीस्कोप गोज बाय नेम?
जो फेमस टेलीस्कोप है नासा का, उसका क्या नेम है? हबल स्पेस टेलीस्कोप। नेक्स्ट वन इज विच प्लैनेट हैज ए रिवोल्यूशन टाइम एंड इट्स शॉर्टर देन इट्स रोटेशन टाइम। ये दोनों डिफरेंट होते हैं, रिवोल्यूशन टाइम और रोटेशन टाइम। तो ये दोनों का सेम किसका होता है? सॉरी, रिवोल्यूशन टाइम है वो शॉर्टर किससे होता है? रोटेशन टाइम से। कौन सा प्लेनेट है वो? वीनस। एंड नेक्स्ट वन इज विच इज द कंट्री विच हैज द ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। Hello students, good morning again in English class. And in English class we are doing our grammar topic and we are doing our present indefinite tense. And now at this time we are doing the uses of present indefinite tense. Okay, let us start today's class. We have already used 4 of present indefinite. Okay, what are the 4? In the previous video we have already done rule number first for habitual, regular or repeated action. It is the first. यह हमने नोट भी डाला था इसके लिए। ये हमारे टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है, आपको याद करनी है। रूल नंबर 2 हमारे पास है बेटा यहाँ पर, इट इज़ यूज फॉर द यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य के लिए। थर्ड हमारे पास आ जाता है, नीचे देखिए, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस पोजेशंस यानी संबंधों को व्यक्त करने के लिए। एंड द फोर्थ इज द, ये देखिए नीचे, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस मेंटल एक्टिविटी, इमोशन एंड फीलिंग यानी इसका प्रयोग हम मानसिक स्थिति, अपने हाव भाव और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं। एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द 5th रूल। अकॉर्डिंग टू 5th रूल, इट इज यूज्ड फॉर ए फिक्स्ड प्रोग्राम एंड फिक्स्ड प्लान इन फ्यूचर। बेटा जब भी कोई हम भविष्य के अंदर अपनी एक योजना बनाते हैं, भाई हमारा प्रोग्राम फिक्स होता है, प्लानिंग हमारी फिक्स होती है, तो उस जगह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल रीओपन्स इन जुलाई। आप लोगों ने देखा होगा कि समर वेकेशन के बाद अक्सर हमारे स्कूल जुलाई में खुलते हैं। तो ये हमारा एक फिक्स्ड प्रोग्राम था पहले, तो यहां पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया। सेकंड सेंटेंस हमारे पास है, ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, यानी यहां पर भी क्या है, देखो यहां पर नेक्स्ट मंथ आ गया हमारे पास कि वो अगले महीने यानी चेन्नई जाता है, यानी हमेशा हर साल जो भी नेक्स्ट मंथ आता है वो चेन्नई जाता है। शी लीव्स फॉर न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंडे, यानी वो न्यूयॉर्क के लिए नेक्स्ट मंडे जाती है। इसमें एक नोट्स भी मैंने आप लोगों के लिए डाला, देखिए, इन दिस टाइप ऑफ द सेंटेंसेस फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स। बेटे इस समय को प्रदर्शित करने वाली जो हमारी क्रिया विशेषण है, जैसे कि लाइक हमारे पास टुमारो वर्ड है, नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट नाइट है, नेक्स्ट मंथ है, इन फरवरी, इन मंडे, जो भी कुछ हमारे पास आता है, ऐसे सेंटेंस में इनका प्रयोग होता है। इस चीज का आप लोगों ने इस पर ध्यान रखना है। अब हमारे पास आता है बेटा रूल नंबर 6। ये हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस है जिसको हम शर्त सूचक वाक्य कहते हैं। इसमें 2 क्लोजेज का प्रयोग होता है। इसमें एक क्लोजेज बेटा प्रिंसिपल क्लोज होता है तथा दूसरा सबॉर्डिनेट क्लोज होता है। सबॉर्डिनेट क्लोज बेटा शुरू होता है इफ से, व्हेन से, बिफोर से, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस एटसेट्रा, इनसे स्टार्ट होता है। और इसके साथ यानी जब ये हो, इनके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास भी किया। ये देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया है, जैसे अभी मैंने बताया था इफ, अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया,
इफ यू रन फास्ट, कोमा है यहाँ पे, यू विल विन है बेटा ये द रेस, यू विल विन द रेस। तो यहां पर हमने इस देश को मार्क किया, ये सबॉर्डिनेट क्लोज हमारे पास हो गया है, क्लोज लिखा हुआ है ये। इधर आप आ जाओगे तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लोज बन गया है। इसको नीचे हमने डाला है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट में हमने देखो इसको पहले सब्जेक्ट बना दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें हम ऐसे एस भी लगा सकते थे, जो मैंने यहाँ पर ऑप्शन में लिख भी सकते हैं हम एस या एस, प्लस में हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास सब्जेक्ट है, प्लस में सेल, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बनाया इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। तो इन्हीं से संबंधित ही मैंने बेटा आप लोगों के लिए ये एक्सरसाइज दी है, जो आप लोगों ने इसमें फिलअप करना है। आइए ये सेंटेंस मैं आपको पढ़ देता हूं जो आपने फिलअप करने हैं बेटा। ये देखिए एक्सरसाइज है, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यूज नॉट वेयर नेसेसरी। अच्छा, लॉइंस डैश, बेटा नोट है हमारे पास, नोट लिव, नोट लिव है ऑन द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। इसमें आपने फिलअप करना क्या आएगा। तो नेगेटिव का वाक्य है, आपने नेगेटिव ही बनाना है यहां पे। व्हाट डैश हमारे पास मेक है, द मून गो राउंड द अर्थ। इसमें फिलअप करना आप लोगों ने। इरेगुलर वर्क नेवर डैश हमारे पास आ गया है, वर्ब हमारी ब्रिंग है सक्सेस। दिस पार्सल डैश कंटेन ए गिफ्ट फॉर यू। माई फ्रेंड्स ऑफन डैश सेंड मी प्रेजेंट। माई मदर रेयरली डैश है, मेन वर्ब हमारे यहां पर ब्रैकेट में स्लिप दी गई है, इन द डे टाइम। सेंटेंस 7th है, आई डैश अंडरस्टैंड है हमारे पास, मेन वर्ब ब्रैकेट में डाल रखी है, एवरीथिंग द टीचर सेज। 8th सेंटेंस हमारे पास है, योर हेल्थ डैश डिपेंड ऑन न्यूट्रियस फूड। 9th है, माई फादर यूजुअली डैश वेक अप एट 5। मेन वर्ब हमारी वेक है, जो हमने ब्रैकेट में क्लोज कर रखी है। 10th हमारे पास है, व्हेन। ये मैंने आप लोगों को बिल्कुल ये जो लास्ट में अभी जो मैंने बताया था इनसे संबंधित है। देखो व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, व्हेन ही डैश कम है हेयर ही विल हेल्प मी। आपने इसके अनुसार इसे फिलअप करना है। ये भी मैंने लास्ट एग्जाम्पल से संबंधित लिया है, अनलेस सी डैश वर्क हार्ड सी विल नॉट सक्सीड। 12th है, आई डैश टीच हर इफ सी कम्स। तो यहां पर हमने टीच, तो ये आप लोगों ने फिलअप करना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। तो ये बेटा आपका होमवर्क है, इसे करोगे तो आपको पता लग जाएगा। रूल से एक भी चीज बाहर नहीं है। वीडियो को लाइक जरूर करना है। थैंक यू। Hello student, how are you? I hope you are better at your home. In today's class, I Priyanka Yadav tell you some basics of computer that generally asked in competitive exam. So let's start our topic, MS Word. Hello student, in previous video we complete MS Word home menu bar. In this video we discuss insert menu bar of the MS Word. Here is your insert menu bar. Select that. In insert menu bar, first is cover page. By clicking on cover page we can insert any cover page of file on the screen like that. That is our cover page for any file. You can write here school or company name. Here document name means file का name write कर सकते हो. यहाँ पे title, नीचे date. Okay.
नेक्स्ट वन इज ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज किस लिए होता है कि आपको बिल्कुल प्लेन पेज आपको चाहिए कोई भी टेक्स्ट राइट करने के लिए, यू कैन सी लाइक ऑन द स्क्रीन। ओके, नेक्स्ट वन इज पेज ब्रेक। पेज ब्रेक इज यूज टू complete that current page and start the next page. By clicking on that, you can see on the screen our cursor is on the next page. Here you see cursor blinking on the next page. That is the blue line is the page break line. And next one option is table. You can select number of row and column, any number of row and column. If you want to select 3 row and 3 column, then click like that, 3 row and 3 column. Okay. Here we see 3 row and 3 column on the screen. By selecting the table, we can change the size of the table. जो इनके कॉलम और रो है इनका विड्थ चेंज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग। राइट क्लिक करेंगे माउस का और यहाँ से इसका साइज चेंज कर देंगे लाइक दैट। ओके, यू सी इंक्रीज द साइज ऑफ द टेबल। Here we can bold the text in the table like italic, like other option, color change and other. We can select by dragging number of row and column, and the other option is insert table. Click on insert table, then we can write here number of row and columns. Okay. And next option is row table. By clicking on that, we can draw a table by row and column. Okay. Like that. Number of row and column, select draw table, then with the pencil we can select number of row and column like that. Okay. नेक्स्ट ऑप्शन इज एक्सेल स्प्रेडशीट। इसमें जो हम टेबल है उसको एक्सेल शीट के थ्रू की तरह बना सकते हैं लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट वन इज क्विक टेबल्स। इन दिस वी कैन सेलेक्ट एनी ऑलरेडी मेक टेबल, यू हैव टू चेंज ओनली डेटा ऑफ द टेबल that is already built table. We can change any of the text here and write our own text. Okay, our next option is pictures, clip art, shapes, smart art and chart. पिक्चर से हम कोई भी पिक्चर इंसर्ट करते हैं स्क्रीन पे like that. Click on picture and select any picture and click on insert. Okay, here you see a picture is inserted on the screen. नेक्स्ट वन इज क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट के थ्रू हम अगर कोई भी पिक्चर हमें चाहिए, जैसे कि हमें एनिमल्स की पिक्चर चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एनिमल राइट किया और गो किया, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एनिमल्स की पिक्चर आ गई है और ये यहाँ पे स्क्रीन पे ड्रॉ कर सकते हैं। उनको इंक्रीज कर सकते हैं इनका साइज और विड्थ। नेक्स्ट वन इज शेप्स। लाइक दैट वी कैन सेलेक्ट एनी शेप फ्रॉम द बॉक्स एंड ड्रॉ ऑन द स्क्रीन. Okay, fill in the base in the color of the shape like that. And next one is Smart Art and Chart. By clicking on Smart Art, we can select any chart from here. That is mostly used when we type any diagram of the number of the part of any, like that. Next one is chart. By clicking on chart, we can select any chart from here and draw on the screen like that. Here we see chart on the screen. Okay, like that. Dear student, in this video we learn how to insert a picture, a table, clip art से कोई भी picture and shape, smart art and chart. So you have to practice on the laptop or computer system for all these things. And your written work is that you have to make a table in your notebook for योर डेली रूटीन टाइम टेबल, कि आप मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जो भी आपका डेली रूटीन का टाइम टेबल है आपको वो टेबल प्रैक्टिस करनी है और नोटबुक में भी ड्रॉ करनी है. ओके स्टूडेंट, दैट इज योर रिटर्न वर्क. मेक ए टेबल ऑफ योर डेली रूटीन टाइम टेबल. आप मॉर्निंग से इवनिंग तक जो भी वर्क करते हैं उसका टाइम टेबल. एंड अदर वन इज योर जून कॉम्पिटिशन मार्क्स लिस्ट. इसकी भी आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है. ओके, थैंक यू. हैव ए नाइस डे. Good morning students. So how are you students? I hope you are all good and fine at your home and doing preparation for your competitive exams quite well. I Anshu Yadav, your maths teacher in MLP School Rajpura, welcome you all to our YouTube channel of online classes. So today's our maths topic is how to find a number that is adjacent on a dice or opposite to a number on a dice.
As you all know, in a dice there are 6 numbers on it. So how to calculate which number is adjacent to one number or which is opposite to another number, that is we are going to learn from today's class. So students, let's start with our dice topic. So dice is the 3-dimensional space example. 3-dimensional means कि if we put a dice on a 2-dimensional space या put on a bench या table, so we cannot see all its parts clearly. Because one is covered, for example, this book will put on a table, so we cannot see its opposite face, as we can see its side face, these faces also upper face, but we cannot see its lower part. So डाइस भी हमारे पास क्या होगा, अगर हम उसको 2 डायमेंशन में रखेंगे तो क्या हम सारे फेसेस नहीं दे सकते. सिमिलरली 3 डायमेंशनल स्पेस को हम नोटबुक पे ड्रॉ भी नहीं कर सकते. वी कैन अज्यूम दीज थिंग्स. सो फॉर कैलकुलेटिंग द अपोजिट फेस या एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ डाइस, हियर आर सम ट्रिक्स in reasoning. So let's start. Which digit will appear on the face opposite to the face with number 1? So here are 2 positions. यहाँ पे 2 पोजीशन गिवन है, लेकिन डाइस क्या यहाँ पे सेम है. सिर्फ डाइस के क्या करा है कि एक बार उसको इधर से दिखाया और एक बार 4 दोनों में कॉमन है, लेकिन क्या कर दिया अब यहाँ पे 6 इधर था, अब कहाँ कर दिया इधर वाले फेस पे, मतलब उसको टर्न कर दिया. ठीक है, सेम डाइस है. तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास 3 कंडीशंस होती है 2 डाइस के लिए. फर्स्टली क्या है, हमारे पास यहाँ पे 2 कॉमन है, 1 के अपोजिट हमें बताना है और कॉमन सो कॉमन है यहाँ पे 4 and 6. सो बाकी जो 2 नंबर बच जाते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास अपोजिट. तो 1 इज अपोजिट टू 5. इन केस यहाँ पे अगर हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर कॉमन होता एंड दैट विल बी ऑन द सेम पोजीशन. सेम पोजीशन मतलब अगर टॉप पे गिवन है तो 4 भी अगर यहाँ पे टॉप पे होता तो बाकी जो नंबर्स हो जाते, जैसे यहाँ पे अगर 1 है और यहाँ पे 5 होता तो वो दोनों आपस में क्या हो जाते, एक दूसरे के अपोजिट. और यहाँ पे इनकेस 3 होता और यहाँ पे 6 होता तो 3 and 6 आर अपोजिट टू ईच अदर. ठीक है, if we are one number common and both of these are on the same position मतलब अगर यहाँ पे टॉप पे है तो टॉप पे ही वो 4 होना चाहिए. इनकेस यहाँ पे 6 है और 6 इधर ही होता तो हम बाकी सबको क्या बोलते थे, वो उसके अपोजिट है. एंड थर्ड केस विल बी इफ वी आर गिवन सिर्फ 1, इफ 1 पॉइंट इज कॉमन. ठीक है, सो 1 पॉइंट इज कॉमन में क्या हो जाता है, और जो कि हमारे पास सेम पोजीशन पे भी नहीं होते हैं. सो वी कैन सो अगर हमारे पास इन केस यहाँ पे सिर्फ 1 कॉमन होता तो हम इसके एडजेसेंट फेसेस देखते हैं. एडजेसेंट फेसेस मतलब क्या होते हैं, उसके बगल वाले पड़ोसी जो फेसेस है उनको कंसिडर करते हैं. जैसे इन केस यहाँ पे अगर 1 यहाँ पे है, सो 1 के यहाँ पे 2 एडजेसेंट क्या है, 4 and 6. और यहाँ पे अगर 1 होता तो उसके एडजेसेंट क्या हो जाते हैं, यहाँ पे इनकेस 5 और 6 लेते हैं तो 5 और 6 क्या हो जाते हैं, उसके एडजेसेंट हो जाते हैं. तो जो एक बच जाता है वो क्या हो जाता है, उसका अपोजिट. ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस नंबर 4 व्हेन 2 डाइस वर रोल्ड. अब यहाँ पे हमारे पास क्या पूछा है, 4 का हमें क्या पूछा है, अपोजिट फेस. बट एज वी सी 4 इज नॉट अपीयर ऑन बोथ दी पोजिशंस. दोनों ही पोजीशन पे क्या है हमारे पास 4 अपीयर नहीं हो रहा है. तो फर्स्टली हम क्या देखते हैं, यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है, एज वी टोल्ड द लास्ट रूल. सो एडजेसेंट, अब हमें 1 के एडजेसेंट फाइंड करते हैं. 1 का एडजेसेंट यहाँ से अगर हम देखें, उसके बगल वाले कौन से, 2 and 3. सो 2 and 3 आर एडजेसेंट एंड 1 का एडजेसेंट क्या है, 6 and 5 ऑल्सो. ठीक है, सो 1 के एडजेसेंट हमारे पास बाकी 4 नंबर हो गए, तो एक ही रहता है अपोजिट, जो कि क्या हो जाएगा हमारे पास 4. तो 1 का अपोजिट क्या हो गया 4, या 4 का अपोजिट क्या हो गया 1. तो हमारे पास 4 का पूछा था, तो 1 इज द अपोजिट टू द नंबर 4. ठीक है, सो नाउ वी मूव टू द 3 पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस. डाइस सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या करा है, उनको टर्न ओवर करके 3 पोजीशन शो करी गई है. तो यहाँ पे क्या है, इफ यू आर गिवन 3 पोजीशन ऑफ द डाइस देन विच फेस इज अपोजिट टू द फेस विद 2 के हमें क्या बताने हैं, यहाँ पे अपोजिट फेस बताना है. तो जब भी हमारे पास 3 डाइस होते हैं तो हम उनमें से क्या करते हैं, एक नंबर कॉमन लेते हैं जो कि 2 डाइस में हो. लेकिन वो 2 नंबर कॉमन किस पे होने चाहिए, जिसका अपोजिट पूछा है उसके अलावा वाले डाइस से. ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों 2 यहाँ पे ही सिर्फ अपीयर हो रहा है, तो इसके अदरवाइज डाइस कौन से, सिर्फ ये दोनों है. तो यहाँ पे अब कॉमन नंबर कौन सा है, 6 and 6. ठीक है, तो 6 के अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एडजेसेंट नंबर्स ढूंढेंगे. 6 के एडजेसेंट नंबर से यहाँ से 1 4
और यहाँ से 6 के क्या है 3 and 5, तो 6 का अपोजिट क्या बन गया, 6 का अपोजिट होगा यहाँ पे 2, और हमें वही पूछा था कि 2 का अपोजिट फेस क्या होगा 6, सो दैट विल बी द आंसर। सो क्या करा है अब हमने 3 डाइस में, क्या करा है जिस नंबर का अपोजिट पूछा है वो जिस डाइस पर अपीयर हो रहा है उसके अलावा बाकी 2 पोजीशंस को हम कंसिडर करेंगे, उनमें हमें क्या ढूंढना है, कॉमन नंबर ढूंढना है। उस कॉमन नंबर से हमें क्या करना है, उसके एडजेसेंट फेसेस कंसिडर करना है। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, जो उसके पड़ोसी हो। सो यहाँ पे क्या था हमारे पास 6 is on both the positions, so we consider the adjacent of 6 on both the positions. So 6 के adjacent यहाँ पे क्या हुए हैं 1, 4 and 3 and 5. So 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास 2, बिकॉज दीज आर ऑल एडजेसेंट, मतलब एक दूसरे के बगल में है, तो अपोजिट क्या होता है सिर्फ 2, ठीक है। सो नाउ वी आर गिवन 4 डाइसेस। 4 डाइसेस में अब हमारे पास क्या है कि विच फेस इज अपोजिट टू द अल्फाबेट बी। बी के क्या बताना है हमें, एडजेसेंट अपोजिट बताना है इन द 4 पोजिशंस, ठीक है। सो बी यहाँ पे देखो, बी एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है बी गिवन है, ठीक है। तो अब हम यहाँ इन तीनों में से बी के क्या करेंगे, एडजेसेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या है बी के एडजेसेंट एफ एंड डी, ठीक है। यहाँ से बी क्या हो गया, सी एंड डी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो उसको दोबारा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज दीज आर द पोजिशन ऑफ द सेम डाइस एंड एक डाइस पे हमारे पास एक नंबर सिर्फ एक ही बार आता है, ठीक है। सो डी ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, तो डी को दोबारा नहीं लिखना है। यहाँ पे बी से हमारे पास क्या है, 2 एडजेसेंट क्या है हमारे पास ए एंड सी, और सी को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास दीज आर ऑल द एडजेसेंट फेसेस ऑफ बी। सो बी का अब हमारे पास सिर्फ ए के अपोजिट बचेगा, और वो क्या है हमारे पास ई, ठीक है। तो यही पूछा था, बी का अपोजिट क्या होगा हमारे पास ई, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करा अब हमने 4 डिवाइसेस में जिसका एडजेसेंट पूछा था वही हमारे पास तीनों पे अपीयर हो रहा था, ठीक है। तो हमने उसी के एडजेसेंट फाइंड कर लिया, और उसके बाद क्या करा है उसका अपोजिट हम बता सकते हैं उससे। सो लास्ट क्वेश्चन, 4 पोजीशंस गिवन है यहाँ अगेन, और हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है 3 के। सो 3 यहाँ पे 1, 2 and 3, तो एटलीस्ट 3 पे हमारे पास अपीयर होना चाहिए 3, तभी हम उसके अपोजिट फेस कंसिडर बता सकते हैं। 4 पोजीशंस में हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 पोजीशंस, 3 डाइस पे कॉमन क्या होना चाहिए, वो नंबर होना चाहिए, तभी हम उसको कंसिडर करके उसके एडजेसेंट एंड अपोजिट बता सकते हैं। तो 3 के एडजेसेंट अगर हमें यहाँ से फाइंड करने हैं, तो यहाँ से क्या है 3 का एडजेसेंट 4, यहाँ 5, 3 का एडजेसेंट क्या हो गया 4 and 5। अब यहाँ पे 3 अपीयर ही नहीं हो रहा है, 3 यहाँ पे है, एंड उसके एडजेसेंट क्या है 6 and 5। 5 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, और हमें पता है एक डाइस पे एक नंबर सिर्फ एक ही बार आता है। यहाँ से 3 का एडजेसेंट क्या है 1 and 6, 6 हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा अब हमारे पास 2। सो आंसर विल बी 2, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। I hope you all understand these tricks. Thank you. Have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू आपकी हिंदी अध्यापिका। हमारा आज का सुविचार है समय अनमोल है। समय अनमोल है, यह एक ऐसा संसाधन है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। कि समय अनमोल है और यह एक ऐसा संसाधन है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन अगर हम समय का सोच समझकर इस्तेमाल किया जाए, अगर समय का सोच समझकर इस्तेमाल किया जाए तो सभी कार्य आसानी से किए जा सकते हैं और जिन्हें आप करना चाहते हैं। कि समय अनमोल है, ये एक ऐसा संसाधन है जिस पर किसी का भी जोर नहीं है या किसी का भी नियंत्रण नहीं है, लेकिन अगर हम समय का सोच समझकर इस्तेमाल करें, सोच समझकर उस पर काम करें तो सभी काम आसानी से किए जा सकते हैं और जिन्हें आप करना चाहते हैं, यानी ऐसे काम जिन्हें आप करना चाहते हो वो आप आसानी से कर सकते हो। अब आज का सुलेख लिखते हैं। सुलेख में बेटा हम सदाचार तक हमने लिखा, सदाचार का हम जो सुलेख लिख रहे थे उसी को आगे लिखते हैं। भावनाओं को चोट न पहुंचे। आगे है सदाचार का नैतिकता से गहरा संबंध है। सदाचार से सदाचार सदाचार का नैतिकता
कहतया नैतिकता से से गहरा 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 संबंध से में बैंध संबंध है। इन्हें एक दूसरे का पूरक कहा जाए तो इन्हें एक दूसरे का एक दूसरे 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 का के पूरक के पूरक कहा जाए तो कहा जे आए जाए तो कोई तो कोई अतियुक्ति आदत यह कहती अतियुक्ति न होगी सदाचार का से दया सदाचार का सदाचार का संबंध मनुष्य की मनुष्य की भावनाओं भय आवे न आहो भावनाओं से और बाहरी आचरण व्यवहार से होता है व्यवहार से होता है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों दोनों एक ही सिक्के के एक है ही सिक्के के दो पहलू है। आपको भी इसको आगे लिखना है। थैंक यू। हम बेटा कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसी से संबंधित जैसे कि नवोदय स्कूल, सैनिक विद्यालय आदि के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। चलो मुहावरे और लोकोक्तियाँ करते हैं। मुहावरे लोकोक्ति। सबसे पहले मुहावरे। जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करता है, जब कोई वाक्यांश सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करता है, तब उसे मुहावरा कहा जाता है। कि मुहावरा क्या है कि जब वो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो वो है आपका मुहावरा कहलाता है। जैसे उदाहरण है, हमारी सेना ने शत्रु के दांत खट्टे कर दिए। हमारी सेना ने शत्रु के दांत खट्टे कर दिए। तो यहाँ पर दांत खट्टे कर दिए क्या है, एक विशेष अर्थ में है। इस वाक्य में दांत खट्टे करने का अर्थ यह नहीं कि सेना ने शत्रु को कोई खट्टी चीज खिलाई थी जिससे शत्रु के दांत खट्टे हो गए। यहाँ मुहावरे का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है बुरी तरह से पराजित करना। बुरी तरह से पराजित करने के लिए इसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का है जिसका अर्थ होता है अभ्यास। मुहावरा जो शब्द है वो अरबी भाषा का है और जिसका अर्थ होता है अभ्यास। वस्तुतः शब्दों का ऐसा समुच्चय मुहावरा होता है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को करता है। मुहावरा एक वाक्यांश के रूप में प्रयोग होता है। इसका अर्थ इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। मुहावरा है एक वाक्यांश के रूप में प्रयोग होता है, इसका स्वतंत्र प्रयोग
नहीं होता। मुहावरे का सामान्य अर्थ न लेकर लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है कि मुहावरा है, उसका सामान्य अर्थ नहीं होकर कुछ अलग अर्थ लिया जाता है। मुहावरे के शब्दों को पर्यायवाची शब्दों से नहीं बदल सकते। जो मुहावरे में जो शब्द होते हैं उनकी जगह हम उनके पर्यायवाची शब्दों को नहीं लिख सकते। कुछ मुहावरे हैं आपके। सबसे पहले अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि का काम न करना। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि का काम न करना। तुम्हारी तो अक्ल पर पत्थर पड़े हैं, जो इतनी सीधी सरल बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। तो अक्ल पर पत्थर पड़ने का अर्थ है बुद्धि का काम न करना, और इसका वाक्य में प्रयोग है कि तुम्हारी तो अक्ल पर पत्थर पड़े हुए हैं, जो इतनी सीधी बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। दूसरा, अगर मगर करना। अगर मगर करने का अर्थ है, इसमें मुहावरे का अर्थ है टाल मटोल करना। अगर मगर करने का अर्थ है टाल मटोल करना। इसका वाक्य में प्रयोग है, मैंने जब रमेश से अपने उधार लिए हुए रुपए मांगे तो वो अगर मगर करने लगा। मैंने जब रमेश से उधार लिए हुए रुपए मांगे तो वो अगर मगर करने लगा। तीसरा, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का अर्थ है साफ इनकार कर देना। अंगूठा दिखाने का अर्थ है साफ इनकार कर देना। मैं शादी में प्रवेश से कुछ मदद मांगी। मैंने शादी में प्रवेश से कुछ मदद मांगी तो उसने साफ अंगूठा दिखा दिया। तो वाक्य में प्रयोग है कि मैंने, यानी कि आप किसी के भी नाम ले सकते हो कि मैंने उससे मदद मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया, यानी उन्होंने साफ इनकार कर दिया। चौथा, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना मतलब निकालना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। रवि अपना उल्लू सीधा करके चलता बनेगा। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना मतलब निकालना, और इसका वाक्य में प्रयोग है कि रवि अपना उल्लू सीधा करके चलता बनेगा। अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन महामूर्ख। अक्ल का दुश्मन का अर्थ होगा महामूर्ख। तुम तो स्वयं अक्ल के दुश्मन बने हुए हो, फिर काम कैसे बनेगा। कि तुम तो स्वयं अक्ल के दुश्मन बने हुए, फिर काम कैसे बनेगा। तो अक्ल का दुश्मन का अर्थ हो गया महामूर्ख होना। तो सबसे पहले दोबारा से एक बार देख लो कि मुहावरा क्या है। कि शब्दों का ऐसा समुच्चय मुहावरा कहलाता है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। मुहावरे हैं वाक्यांश के रूप में प्रयोग होते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते। ये अपने सामान्य अर्थ को न लेकर लाक्षणिक अर्थ का प्रयोग करते हैं, और मुहावरे में जो शब्द आते हैं उनमें हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। आज के मुहावरे हमारे अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि का काम न करना, अगर मगर करना, टाल मटोल करना, अंगूठा दिखाना, साफ इनकार कर देना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना, अक्ल का दुश्मन महामूर्ख। थैंक यू।